کہتے ہیں کہ تاریخ دنیا کے جرائم کے مطالعے کا نام ہے۔ آج ایک ایسی ہی تاریخی پس منظر کو لے کر میں آپ کے سامنے آیا ہوں جو ظلم و زیادتی، قتل و غارت، بہادری اور جنگ و جدل پر مبنی گلگت بلتستان کی تاریخ کا ایک دلخراش اور ساتھ باعث فخر ایک مشہور داستان ہے۔ یہ تاریخ ہے غازی گوہر امان اور ریاست یاسین کی۔ محمد بیگ کے 5 بیٹے تھے، ان میں سب سے مشہور شاہ خوشوقت اور شاہ کتور تھے۔ شاہ خوشوقت 1640 عیسوی میں یاسین اور مستوج میں حکمرانی بناتے ہیں اور یہاں کے متار بنتے ہیں، جبکہ شاہ کتور چترال کے متار بنتے ہیں اور 1640 عیسوی کے بعد ان علاقوں پر یہ فیملیز حکمرانی کرتے ہیں۔ شاہ خوشوقت کی فیملی میں سے شاہ خوشوقت کی فیملی کو وقار بخشنے والے سب سے بہادر اور بہت ہی نامور شخصیت گوہر امان تھے۔ گوہر امان 1825 عیسوی میں ان کے چاچا کے وفات کے بعد یاسین اور مستوج کے متار بنتے ہیں اور یہاں پہ باقاعدہ اپنی حکمرانی شروع کرتے ہیں۔ 1840 عیسوی سے پہلے گلگت بلتستان کا یہ ریجن چھوٹے چھوٹے شاہی ریاستوں میں بٹا ہوا تھا۔ ان شاہی ریاستوں میں ریاست بلتستان، ریاست ہنزا، ریاست یاسین، ریاست نگر اور ریاست گلگت مشہور تھے۔ دریل تنگیر میں قبائلی سسٹم تھا اور ان شاہی ریاستوں کے آپس میں عموماً جنگ ہوتی رہتی تھی اور ساتھ ساتھ یہ شاہی ریاستیں ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ داریاں بنا کے، ایک دوسرے کے ساتھ شادیاں کر کے ایک دوسرے سے ایک اسٹرانگ ریلیشنز بھی رکھتے تھے۔ یاسین، جو کہ ورشگون کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، گریٹ گیم کے ٹائم پہ اپنے اسٹریٹجک لوکیشن کی وجہ سے ممکنہ روسی حملے کی زد میں بھی رہتا تھا۔ اسی وجہ سے برٹشرز اس ریاست کو اہمیت کے حامل سمجھتے تھے۔ گوہر امان خوشوقت فیملی اور ریاست یاسین کے ایک بہت ہی مشہور اور ایک پاورفل حکمران ہو گزرے ہیں۔ ان کی حکمرانی یاسین، مستوج، بنیال، گلگت اور ایون بونجی تک رہی ہے۔ 1841 عیسوی میں گوہر امان ریاست گلگت پر حملہ کرتے ہیں۔ اس ٹائم ریاست گلگت کے راجہ شاہ سکندر شاہ تھے۔ راجہ شاہ سکندر شاہ کو مارنے کے بعد ریاست گلگت کے اوپر گوہر امان قبضہ کرتے ہیں۔ راجہ سکندر کے ایک بھائی کریم خان اس ٹائم گور چلاس میں مقیم تھے۔ وہ مہاراجہ کشمیر سے اپیل کرتے ہیں کہ ان کی مدد کی جائے اور گلگت کو پھر سے بحال کیا جائے۔ مہاراجہ کشمیر کرنل نتھو شاہ کی سربراہی میں سکھ فورس بھیجتی ہے کہ وہ گلگت جا کے اس گلگت کے ریاست کو پھر سے بحال کرے۔ جب کرنل نتھو شاہ اپنے سکھ فورسز کو لے کر گلگت پہنچتے ہیں تو گوہر امان خود ہی گلگت کو خالی کر کے واپس یاسین آتے ہیں ری گروپنگ کے لیے۔ اب گلگت میں ایک پیرالل حکومت ہوتی ہے، سکھ فورسز اور لوکل راجہ مل کے گلگت میں حکمرانی کرتے ہیں۔ گلگت میں ایک پیرالل حکومت اسٹیبلش کرنے کے بعد سکھ فورسز کرنل متھرا داس کی سربراہی میں یاسین کی طرف موو کرتے ہیں۔ جب وہ شیروٹ اور گولپور کے درمیان پہنچتے ہیں تو گوہر امان اپنے سپاہیوں کے ساتھ ان کا راستہ شیروٹ اور گولپور کے درمیان روک لیتے ہیں اور وہاں ان کے ساتھ جنگ لڑی جاتی ہے اور اس جنگ میں گوہر امان فتح یاب ہوتے ہیں۔ متھرا داس وہاں سے بھاگ کر واپس کشمیر چلے جاتے ہیں۔ 1846 عیسوی میں کشمیر کو گلاب سنگھ کے حوالے کی جاتی ہے امرتسر ایگریمنٹ کے ذریعے، جس میں 7.5 ملین میں برٹشرز جموں کشمیر کو گلاب سنگھ کو بیچتے ہیں۔ 1847 عیسوی میں گلگت اور رستور میں سکھوں کے جگہ ڈوگرا مسلط ہوتے ہیں۔ گوہر امان 1848 عیسوی میں متار چترال امان الملک کی مدد سے پھر سے گلگت کے اوپر حملہ کرتے ہیں۔ وہ گلگت جاتے جاتے وہ شیر قلعہ، گولپور اور بارگو کے قلعوں کے اوپر بھی حملہ کرتے ہیں اور ان ایریاز میں بھی خود کی حکمرانی امپوز کرتے ہیں۔ شیر قلعہ میں اس وقت ان کے سوتیلے بھائی راجہ عیسیٰ بہادر حکمران تھے۔ وہ وہاں سے جان بچا کر کشمیر چلے جاتے ہیں اور کشمیر میں راہ فرار اختیار کرتے ہیں۔ گلگت پر حملے میں گلگت کے لوکلز اور ریاست ہنزا اور ریاست نگر کے سپاہی بھی گوہر امان کا ساتھ دیتے ہیں اور گلگت پر قبضہ کیا جاتا ہے۔ اس حملے میں کرنل نتھو شاہ اور کریم خان کو مار دیا جاتا ہے اور گلگت کے چپروٹ قلعے پر گوہر امان قابض ہوتے ہیں۔ اس کے بعد حملوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ 1849 عیسوی میں پھر سے کشمیری فورسز قلعہ چپروٹ پر قبضہ کر لیتے ہیں
1851 ईस्वी में गौहरमान फिर से चपरोट किला पर हमला करते हैं और साथ वहाँ पे कुछ ही फासले पर नौपरा किला भी मौजूद था। उन दोनों किलों पर एक साथ हमला करते हैं। जब इस हमले की खबर बॉब सिंह को मिलती है, जो कि बाउंड्री और अस्तौर के रिजर्व फोर्सेस के कमांडर थे, तो वो अपने साथ 1200 सिपाहियों को लेकर गिलगित की तरफ मूव करते हैं। जब वो गिलगित के करीब पहुंचते हैं तो दरिया के एक जानिब से हुंजा फोर्सेस और दूसरी जानिब से गौहरमान उनका रास्ता रोक लेते हैं। कहा जाता है कि 7 दिनों तक डोगरा फोर्सेस को खुराक की फरहमी मुअत्तल की जाती है और उसके बाद डोगरा फोर्सेस के 1000 सिपाहियों को मार दिया जाता है। 100 के करीब को प्रिजनर्स बनाया जाता है, जिनको बाद में गुलाम बनाकर फरोख्त किया जाता है। बॉब सिंह को एक शर्मनाक शिकस्त का सामना करना पड़ता है। इस शिकस्त के बाद डोगरा की पूरी फोर्सेस वहाँ पे तबाह होती है। उस जगह को आज भी बॉब सिंह परी के नाम से जाना जाता है। इस शर्मनाक शिकस्त के बाद फिर सिख फोर्सेस हिम्मत नहीं करते हैं कि वो फिर से गिलगित के ऊपर हमला करें जब तक गौहरमान जिंदा। डॉक्टर लिटनर के मुताबिक जब गौहरमान गिलगित के हुक्मरान थे तो उस टाइम पे जनरल मथुरादास, जिनको पहले शिरोट और गुलापुर के दरमियान शिकस्त का सामना करना पड़ा था, फिर से 5000 सिपाहियों को लेकर बाउंड्री और अस्तौर में एक थाना बनाने की नियत से आते हैं। जब इसकी खबर गौहरमान को मिलती है तो गौहरमान दरेल और तंगीर की कबायली सिस्टम का मदद लेते हैं। दरेल और तंगीर से 5000 सिपाही आते हैं और गौहरमान भी यहाँ से 5000 सिपाही लेकर जाते हैं। उन फाइटर्स में गौहरमान के साथ नोमल, सकवार, मिनावर, बगरोट से भी फाइटर्स मौजूद थे और इस जंग में फिर से मथुरादास को शिकस्त दी जाती है। एक जानिब से कबायली जंगजू हमला करते हैं और दूसरी जानिब से गौहरमान अपने सिपाहियों के साथ हमला करते हैं और उनको वहाँ से भगाते हैं और वहाँ पे भी उनको शिकस्त का सामना करना पड़ता है। इस जंग को बैटल ऑफ चकरकोट के नाम से जाना जाता है। जब रणबीर सिंह कश्मीर के महाराजा बनते हैं तो रणबीर सिंह अपने फोर्सेस को फिर से ऑर्डर करते हैं कि वो गिलगित के ऊपर कब्जा करें, गिलगित पर हमला करें और गिलगित के ऊपर फिर से कब्जा किया जाए। देवी सिंह नरीनिया की सरबराही में महाराजा कश्मीर रणबीर सिंह एक फोर्स भेजते हैं कि वो गिलगित के ऊपर जाके फिर से हमला करे और गिलगित को अपनी हुक्मरानी में लाए। जब फोर्सेस गिलगित की तरफ मूव करते हैं तो 1860 का ये पीरियड होता है और गौहरमान यहाँ पे नेचुरल डेथ उनको मिलती है और वो यहाँ पे फौत होते हैं। उस टाइम पे यहाँ पे गौहरमान जैसी कोई रेजिस्टिंग लीडरशिप मौजूद नहीं थी और इतनी पावरफुल क़यादत यहाँ पे अवेलेबल नहीं थी कि वो उन फोर्सेस का मुकाबला कर सके और उन फोर्सेस को रेजिस्ट कर सके। वो फोर्सेस इजीली आके गिलगित के ऊपर कब्जा करते हैं। गिलगित के ऊपर कब्जा करने के बाद उनका सबसे बड़ा हदफ जो होता है वो रियासत यासीन होता है, क्योंकि रियासत यासीन ने ही सिख फोर्सेस को एक बहुत ज़्यादा नुकसान दिया था और उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ पहुंचाई थी। सबसे जो बड़ा रिकावट सिख फोर्सेस का था वो रियासत यासीन और गौहरमान थे। सिख फोर्सेस ये डिसाइड करते हैं कि यासीन वालों से बदला लेना है और यासीन वालों को वो सज़ा देनी है जो उन्होंने पहले सिख फोर्सेस को जैसी अजियत दी थी। सिख फोर्सेस कहते हैं कि 12,000 फोर्सेस पर मुश्तमिल थी। उनमें से 9,000 इन्फेंट्री थे और 3,000 कैवेलरी थे। वो यासीन की तरफ मूव करते हैं और उन फोर्सेस को ये ऑर्डर दी जाती है कि यासीन में चाहे बूढ़ा हो, जवान हो, बच्चा हो, किसी को नहीं बख्शना है। पूरे आबादी को नीस्त नाबूद करने का ऑर्डर मिलता है। जब फोर्सेस यहाँ पहुँचते हैं तो लोकल उनके साथ मुकाबला करते हैं और उस टाइम पे यहाँ के जो हुक्मरान थे वो अमानुल मुल्क थे। वो उस हमले की खबर सुनते ही यहाँ से भाग के चित्राल चले जाते हैं और अपनी जान बचाते हैं। जब फोर्सेस यहाँ पहुँचते हैं तो रेजिस्टिंग फोर्स कोई यहाँ पे मौजूद नहीं थी, तो ये लोग यहाँ से भागकर सबसे जो महफूज किला यासीन का होता था उस टाइम पे वो मोडूरी फोर्ट होता था। मोडूरी फोर्ट में जाके ये लोग पनाह लेते हैं और वहाँ पे जाके ख़ुद को बचाने की कोशिश करते हैं। कई दिनों तक सिख फोर्सेस कोशिश करती है कि वो मोडूरी फोर्ट को कंकर करे और मोडूरी फोर्ट में मौजूद सबको मार दे, लेकिन वो उसमें नाकाम रहते हैं क्योंकि स्ट्रेटेजिकली मोडूरी फोर्ट ऐसी जगह पर मौजूद है कि जिसको इजीली एक्सेस करना बहुत मुश्किल है। मोडूरी फोर्ट 500 फुट ऊंचे मुकाम पर मौजूद है, जहाँ से ऊपर जो सिपाही होंगे उनको एक एडवांटेज होती है कि वो नीचे से आने वाले सिपाहियों को इजीली टारगेट कर सकते हैं। तो कई दिनों तक वो किला महफूज रहता है। वहाँ पे
उस किले की तरफ जाने के लिए एक सीक्रेट टनल हुआ करता था। उस सीक्रेट टनल के बारे में सिख फोर्सेस को पता नहीं था। क्या कहा जाता है कि एक लोकल ट्रेडर ने उस सीक्रेट टनल के बारे में उन सिख फोर्सेस को बताया। जब वो सिख फोर्सेस उस टनल को जान लेते हैं और उस टनल से गुजर के अंदर दाखिल होते हैं तो बेदरीग कत्ल आम की जाती है, जिसको डॉक्टर जॉर्ज विलियम हेवर्ड अपने एक लेटर्स में जो कि कलकत्ता न्यूज़पेपर्स को लिखते थे उसमें डिस्क्राइब करते हैं कि सिख फोर्सेस एट्रोसिटीज़ कमिट करते हैं मडूरी फोर्ट में, और वहाँ पे बूढ़े जवान बच्चे सबको शहीद किया जाता है और अनकरीब 2000 लोगों को मार दिया जाता है। कहा जाता है कि बच्चों को हवा में फेंक कर उनके 2 टुकड़े किया जाता था। जो प्रेग्नेंट वुमेन्स थे उनको मार के उनके पेट से अनबॉर्न बेबीज़ को भी मार दिया गया है। डॉक्टर जॉर्ज विलियम हेवर्ड जो कि पहले अंग्रेज़ थे जिन्होंने यासीन का विज़िट किया था 1870 ईस्वी की दहाई में, वो ये सारा कहानी कोलकाता के एक न्यूज़पेपर को अपने लेटर्स के ज़रिए लिखते हैं। बाद में 1870 ईस्वी में ही डॉक्टर जॉर्ज विलियम हेवर्ड को दरकुत में कत्ल किया जाता है, जिसके ऊपर टीम हैनिगन ने एक किताब भी लिखी है, मर्डर इन द हिंदू कुश, जॉर्ज विलियम एंड द ग्रेट गेम। 1863 ईस्वी में ये सारा वाक़या पेश आता है। 1863 ईस्वी की इस मैसेकर को कश्मीरी बहुत ज़्यादा सराहते हैं और महाराजा कश्मीर एक मेडल देते हैं उन फोर्सेस को, उन विक्टोरियस फोर्सेस को, मेडल फॉर वेलोर एट द मडूरी। तो ये 1863 ईस्वी में इस तरह का एक दिलखराश वाक़या देखने को मिलता है। गोहरमान जब तक जिंदा थे एक बहुत ही पावरफुल मिलिट्री स्ट्रेटजिस्ट थे और उन्होंने कोई जंग नहीं हारी। जब तक गोहरमान जिंदा थे रियासत गिलगित और रियासत यासीन महफूज रियासतों में तस्वुर किए जाते थे। जब 1860 ईस्वी में उनका इंतकाल होता है तो इन रियासतों में कोई ऐसा हुक्मरान पैदा नहीं होता है जो गाजी गोहरमान की तरह हुक्मरानी करे और इस रियासत को महफूज बनाए। 1863 ईस्वी में इस रियासत में कत्ल आम की जाती है और ये रियासत उसके बाद बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है। 1895 ईस्वी में खुशबख्त रियासत चित्राल को गिलगित से अलग की जाती है और वहाँ के लिए शुजाउल मुल्क को मितार बनाया जाता है। यासीन और गुप्स के लिए अलग गवर्नर मुकर्रर करते हैं और 1895 ईस्वी में इश्कॉमन को भी रियासत यासीन से अलग किया जाता है और वहाँ के लिए गवर्नर बना के भेजा जाता है। उसके बाद से महाराजा कश्मीर का इन्फ्लुएंस जीबी के ऊपर रहता है और गिलगित के रियासतों के ऊपर महाराजा कश्मीर इन्फ्लुएंस उसके बाद उसका स्टार्ट होता है। उससे पहले अगर गिलगित बल्तिस्तान की तारीख़ को देखें तो हमारा कश्मीर के साथ कोई लिंकेजेस नहीं बनते हैं और 1860 से पहले हम अगर गिलगित बल्तिस्तान की तारीख़ को देखें तो ये खुद ही एक शाही रियासतों में बटा हुआ था और कश्मीर का कोई इसके ऊपर इन्फ्लुएंस नहीं था। जब गोहरमान की वफ़ात होती है तो उसके बाद कश्मीरी महाराजा यहाँ पे डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं और डायरेक्टली इसको इन्फ्लुएंस करते हैं और अपने गवर्नर्स यहाँ पे भेजते हैं। आई होप कि नाज़रीन आपने ये स्टोरी एंजॉय की होगी। इस स्टोरी को मैंने 3 सोर्सेज से मैंने ली है। एक ब्रिगेडियर रिटायर मसूद अहमद ने इस स्टोरी को लिखा है, बहराम खान शाह एक लेक्चरर हाई सेकेंडरी के, उनके मैंने हेल्प ली है। रॉयल ने कुछ इंटरनेट के सोर्सेज से मैंने ये तमाम स्टोरी को आपके सामने पेश करने की कोशिश की है। अगर स्टोरी आपको अच्छी लगी है तो उम्मीद करते हैं कि आप इसको शेयर करेंगे और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।